हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं A Sports, 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. The news out of Lucknow is that the unstoppable force in blue continues its march victorious yet again. India takes another game away and the defending champions England, their fortunes just keep going down and further down. Let's take a look at how this all went down. But before we do that, let me bring in my panelists into the discussion. I've got three former captains of Pakistan, three outstanding minds of cricket, and it's a great privilege to be sharing this space with them. I've got first up the dependable backbone of Pakistani batting when everything else was collapsing around him, always the most successful test captain of Pakistan's test cricket history. I've got Misbah. Misbah, good evening, assalamu alaikum. Good evening, assalamu alaikum ji. With that, I've got one of the most interesting personalities behind the wickets when the two Ws were operating. Also Captain Pakistan, great running between the wickets, known as the man of crisis and the silver fox of the pavilion, Moin Khan. Moin, good evening and assalamu alaikum. Good evening, assalamu alaikum. And finally with that, I have got the most entertaining, enthralling and cricket royalty, as we call him, the one and only, the king of all-rounders, the sultan of swing, Wasim Akram. Wasim, good evening. Good evening, ji. Assalamu alaikum, everyone. Hope all is well. And with that, let's take a look at the match summary. This is how it went down. England winning the toss and then electing to bowl. India coming up with 229 for 9, playing their full 50 overs. That's a very important thing to keep in mind there. Though Rohit Sharma believed they were 30 runs short, but that was not to be. This was more than enough to make India cross the finish line with a victory. Now look at those batting numbers there. Rohit there, the captain leading from the front, leading with example. And then Sky there, man, Surya Kumar Yadav. I mean, you don't know what to do with this batting order, because if there is somebody that doesn't deliver, there's always somebody else in that batting order that will deliver. And then the English bowlers, well, they must be happy with those figures, because they did apply a lot of pressure on the Indian batting, especially with the new ball. In reply, England, well, England had no answers to the outstanding bowling attack of India, especially the way Bumrah started this. His ball was snaking around and was almost unplayable. And, well, a lot of the English batsmen, well, they're off color, period. India winning this one by 100 runs, and they just keep going on and on non-stop. With that, आइए जरा नजर डाल लेते हैं points से. The ICC Men's World Cup India 2023 looks like India is back on top, right on top. They've played 6, won all 6. They're sitting there with 12 points. Look at that. And then South Africa trailing right behind them with 10 points. New Zealand trailing with 8 points. Australia trailing with 8 points. Sri Lanka trailing with 4 points in the 5th place. Pakistan trailing with 4 points, 6th place. Afghanistan also with 4 points, 7th place. Netherlands also with 4 points, 8th place. Bangladesh with 2 points, 9th place. And so is England with 2 points, all the way at the bottom of this table. Remember, the top 4 are the ones that will be playing the semi-final. The bottom 2, they will have to really worry about their Champions Trophy fortunes. And with that, that's your points table. Wasim, let me start with you. Winning the toss and putting India into bat, thinking that abhi tak to sare chase mein would jeete. Let's see how they come up. Now, we all thought when the first innings ended that India was definitely lagging. England have a chance. That England have a chance. But wicket was very different. Yeah. Usually जो हमने अभी इस World Cup में pitches देखी हैं, ये pitch काफ़ी मुश्किल थी बैटर्स के लिए early on. Especially जब इंडिया बैटिंग करने आया, उनके कप्तान ने पोस्ट इंटरव्यू में कहा है कि he realized with his experience कि this is the pitch, one has to stay there longer. And yeah, like you rightly said, he led from the front. I mean, 87 or 101 balls, it was need of the hour. Yeah. पार्टनरशिप की ज़रूरत थी. आपने स्काई का भी जिक्र किया. एक बैट्समैन ने रन्स नहीं थे कि अभी तक इस वर्ल्ड कप में, वो था सूर्या कुमार. He's got 49 runs. He played very well, very sensible. और किसी भी टीम की अब फाइटिंग स्पिरिट का अंदाज़ा कैसे लगाते हो? वो आप क्रिकेट में लगाते हो जब उनकी टेल फाइट करे बैटिंग में. जी हाँ. अब देखें उनके आखिरी प्लेयर ने बुमराह और नंबर 9-10 जो भी विकेट थी, कुलदीप ने 21 रन उन्होंने जोड़े हैं. सो वो 21 रन इस पिच पे
तकरीबन उसके 50-60 के वो थे मुकाबले में. सो दैट शोज़ के उनको एक सेंस थी, सिचुएशन अवेयरनेस थी कि वे हिटें लग नहीं रही, अगर हम आउट हो गए तो 3 ओवर बच जाएंगे. उन्होंने सिंगल होनी शुरू कर दी एंड दैट 21 रन इन द एंड मेड अ डिफरेंस. बैटेड एक्स्ट्रा प्रेशर. एंड आपने बिल्कुल ठीक कहा, इंडिया टीम की फास्ट बॉलिंग, they looked brilliant, they looked the best in the world, starting from the leader of the pack, Bumrah. Siraj ran in and Shami did the last nail in the coffin for England. And the England team, they look out of touch, out of form. This is what happens when you don't take ODI cricket seriously. Almost, I just want to make this comment, I don't know if it's appropriate or not, but I just felt like they were almost disinterested. Some of the players were disinterested in the game. I think they knew that they're not going to qualify, but I understand India outplayed them in every department. England, though fought well, they fielded really beautifully. उन्होंने अपने आप को throw इधर किया, उधर किया, they tried, but in the end they were against the best side in this World Cup. I mean, India ऐसी team World Cup में मुझे इनकी performance देख के, confidence देख के, support देख के मुझे 92 का World Cup में न्यूजीलैंड की टीम याद आ गई. वो पहले 7 के 7 मैच convincingly, single-handedly, न्यूजीलैंड में सारी टीमों को उन्होंने हराया था. And that's what India is looking like right now. Complete control of the game in all the departments. Total control of the game. Let's talk about Rohit Sharma's batting here today, Misbah. Even though it was a difficult pitch, but उन्होंने बड़ी एक interesting बात की कि वो जिस बॉल पे आउट भी हुए, उन्होंने कहा the only way you can put pressure back on a bowler is कि जो zone में ball आए, you still attempt it, and that's what he was trying to do when he got out, right? But some of the shots that he played, even on this difficult pitch with these conditions and all that, were remarkable. देखें, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बैटिंग ऑन दिस काइंड ऑफ पिच, स्पेशली जब आपके इर्द गिर्द विकटें गिर रही होती हैं, उस वक्त आप बड़ा मुश्किल होता है कि इस तरीके से आप ये वाली इंटेंट शो करें और स्टिल बॉलर्स को अंडर प्रेशर रखें. नो डाउट के स्टार्ट उनको थोड़ा सा बेहतर मिल गया था, बट उसके बाद फ़ौरन 3 विकटें गिरी हैं और 3 बहुत बड़ी विकेट्स थी उनके लिए. विराट कोहली का आउट होना एंड देन ही जस्ट स्टार्ट प्लेइंग, वो जिसको कहते हैं ना कि एंकर भी करना है और साथ प्रेशर भी डालना है अगली टीम पे. कहीं पे भी वो जो चीज़ थी कि उन्होंने मैच को उतना हाथ से नहीं जाने दिया. कहीं ना कहीं हम इन हंट रहे 4 एंड ओवर से, इवन लेस देन 4 एंड ओवर से एक टाइम पे 30 ओवर के बाद 4+ पे ले गए थे वो. और बिल्कुल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उनकी बैटिंग की, नोइंग द सिचुएशन कि गेम अब किस तरफ जा रही है, नोइंग द कंडीशन, रिस्पेक्टिंग द कंडीशंस, एंड देन पंच कब मारना है दूसरी टीम को, वो राइट टाइम पे पंच मारना. दैट वाज आई थिंक the quality of this inning. Yeah, absolutely, just outstanding. Let's talk about that Surya Kumar Yadav innings, Moin. Again, I mean, Sky is just another phenomenal player. और आप ये ज़रा देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि वो ऊपर से अगर फेलियर होता भी है तो पीछे कोई ना कोई ज़रूर है इन द मिडिल ऑर्डर. उनको पता है कि यार अच्छा चलो, ओके, नो प्रॉब्लम, पीछे से कोई संभाल लेगा. एंड देयर यू हैव अनदर इनिंग्स हियर 49. आई मीन, इट वाज अनफॉर्चुनेट कि उनकी हाफ सेंचुरी नहीं हुई. इट क्लियरली शो हो रहा है यहाँ पे जो इंडिया की विद इन द टीम एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा है ना, वो उसकी रिफ्लेक्शन नज़र आती है यहाँ पे मुझे, क्योंकि हर प्लेयर अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है, अब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए खेल रहा है टूवर्ड्स के हम वर्ल्ड कप जीतें. आई थिंक सूर्या कुमार जितनी देर ऐसे प्लेयर हैं, वो जितनी देर क्रीज पे रहते हैं, उनके रन्स नहीं रुक सकते. आज भी अगर हम दोनों टीमों के बैट्समैन को देखें, ही इज़ द ओनली वन जिसने अबव 100 स्ट्राइक रेट पे आज खेला है. ही इज़ द ओनली वन. आई थिंक ये प्लेयर, ऐसे प्लेयरों को आउट करना ओपोनेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी देर खड़े रहेंगे इन्होंने रन्स करने, ये इनकी एक आदत है, एक कि हर गेंद को कोशिश करते हैं कि रन्स निकालें, शॉट मारें, प्रेशर पुट ऑन करें ओपोनेंट्स के ऊपर. बहुत खूबसूरत शॉट. ये तो उनका पेट जोन है, यहाँ पे बड़े छक्के मारते हैं, 360 में खेलते हैं. आई थिंक जितनी देर रहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए, जितनी देर खड़े होंगे रन्स बनाते रहेंगे और प्रेशर आता रहेगा. All right, with that we're going to take a break, but sorry Wasim, we're going to take a break. When we come back, there's more conversation on this. Don't go away. Keep watching A Sports and Sports and the Airwise app. Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhar-e-Alam. Aap dekh rahe hain Sports and Sports in the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. The news out of Lucknow is that India, the unstoppable force in blue, has done it again
England, well, they have a lot of things to figure out. हम लोग बात कर रहे थे अभी ब्रेक पे जाने से पहले बैटिंग की, इंडिया की बैटिंग के हवाले से बात कर रहे थे. And of course, Rohit Sharma and you have a great innings there by Sky as well. Outstanding how they put up that. Looked like a small total, but in the end it was not to be. Now let's talk about the English bowling. Let me bring this to you, Wasim, to start off with. The English bowlers, and Rohit also acknowledged that, वो नई बॉल के साथ बड़े ज़बरदस्त थे. Yeah, they bowled well. They were similar kind of condition they used to bowl in England. बॉल थोड़ा स्लो था पिच, जो यूजली काउंटी क्रिकेट में होता है, और बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की. डेविड विली ने 3 विकेटें उसने ली और रन भी नहीं दिए, सिर्फ 45 रन दिए. क्रिस वोक्स बॉलवेल ब्रेक थ्रू शुरू में लेके दिए इन्होंने. आई थिंक बॉलिंग ओवरऑल अच्छी थी. जैसे मुस्बह ने अभी ब्रेक में एक्सप्लेन किया है कि इन्होंने ग्रेम की जो ग्रिप निकली है इनसे, जो थोड़ी सी निकली है, मिसबा और मेरे ख्याल में मोइन भी साथ ही था, कि जो इन्होंने 4 ओवर, जब रोहित और कौन खेल रहा था उसके साथ, केएल राहुल, जब 4 ओवर उन्होंने उसको दे दिए हैं, लिविंगस्टन को दे दिए हैं, उन्होंने उसको लूट लिया 4 ओवरों में. अब ऐसे मौके पे आप अपने मेन बॉलर्स को बॉलिंग कराते हो, अब ओवर्स निकालते नहीं. और इंग्लैंड को चाहिए कि इट्स अबाउट टाइम. ब्रुक जैसा, हैरी ब्रुक जैसा प्लेयर इज सिटिंग आउटसाइड. आई मीन दुनिया में कभी सेंस नहीं बनती. दे हैव टू इन्वेस्ट इन यंग ब्लड नाउ. ये वही प्लेयर हैं जो पिछले वर्ल्ड कप के थे. एंड बिफोर द मैच टुडे, हमने प्री मैच पे भी वो दिखाया था, नासिर हुसैन का भी एक इंटरव्यू जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे, जो पैकेज दिखाया था वसीम, द एंड ऑफ एन एरा. उसमें नासिर सेड दिस, दैट नाउ यू नो देयर आर सम पीपल वेटिंग इन द विंग्स, लाइक supposedly if Ben Stokes doesn't want to play one day cricket, don't push him to play one day cricket. Today he played a very below average shot. The quality एक प्लेयर की जिक्र किया था वसीम मैंने, जेसन रॉय, जो कि पिछले दिनों काफ़ी वनडे खेले, जिन्होंने रेगुलरली वनडे क्रिकेट खेली है, यू नो, उनको भी आई थिंक शायद जो मैंने पढ़ा था, आउट ऑफ फॉर्म के अलावा ही वांटेड टू not sign the contract with ECB because he wanted to play leagues all over the world. Maybe that's why. Okay. Could be that reason. We don't know this. But he was a very good player. डिस्कस यही कर रहे थे कौन से प्लेयर्स ने ज़्यादातर वनडे यू नो छोड़े हैं इंग्लैंड के लिए बिफोर द वर्ल्ड कप. 32 ही बट ही ओवरऑल जो वसीम भाई ने बात की है ना, कि हैरी ब्रुक की बात की है, ही लुक गुड. एक मैच में रन किए, और ओवरऑल अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इनको रन्स नहीं किए हुए किसी ने, और जिसने रन्स किए थे एक मैच में उसको फिर आपने ड्रॉप कर दिया. तो नाउ everybody is in the same boat. Yeah. So let's dissect the Indian wickets, Indian battings, because जिस तरह English bowlers ने बॉल किए, खास तौर पे आज वोक्स ने और विली ने, you know, they look, and we were talking about, they were looking really good. But Shubman Gill, now Shubman Gill के लिए तो कोई मसला ही नहीं होना चाहिए था. I mean, if Rohit was on the other end, he should have, you know, he could have also survived for a very long time. नहीं, मसला जब आपके ऐसे स्ट्रोक मेकर होते हैं ऊपर, फ्रीली जो खेलते हैं, और अगर ऑफ द सीम गेंद थोड़ा बहुत हिलता है तो मुश्किल हो जाती है. हिट थ्रू द लाइन वाले प्लेयर, जब भी उनको अच्छी जगह से गेंद थोड़ा बहुत निबल राउंड होता है तो मुश्किल होती है. और वही हुआ, थोड़ा सा खिंचा हुआ बॉल, जिसको नॉर्मली वो बड़े अच्छे शॉट्स खेलते हैं, तो वहाँ से सीम होके देखें गेंद अंदर है, बिल्कुल टेस्ट मैच वाली बॉलिंग लेंथ. Look at that again. ये देखिए, ये सीम पड़ के बॉल आया. अब ये बॉल की क्वालिटी है. इसमें प्लेयर यही है कि अगर आप इसको रोक जाते हैं, बट यही क्वालिटी है उनकी कि इन्हीं अच्छे बॉलों को जब पिच थोड़ा अच्छा होता है तो वो चौके मारते हैं. ऐसी पिच पे कहीं ना कहीं फिर आपको रोकना पड़ता है. दूसरी तरफ अगर हम रोहित शर्मा की बात करें, ही सो एक्सपीरियंस, उसको अंदाज़ा हो गया था कि मैंने कब चांस लेना है. अगर बॉल थोड़ा सा दूर है उस पर चांस लेना है, या फिर मैंने फीट यूज़ करने हैं. थोड़ी सी शॉर्ट सिलेक्शन डिफरेंट की उन्होंने. विराट कोहली के ऊपर आ जाते हैं फिर. ही केम इन एंड आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू मोइन गेट द प्रेशर ऑफ, चूंकि बॉलिंग काफी हावी हुई थी, और वो उन्होंने एक दफा पहले भी अटेम्प्ट किया, एंड देन ही गॉट आउट. इट वाज लाइक ऑलमोस्ट एज इफ विली एंड द इंग्लिश साइड हैड सेट हिम अप विद द फील्ड एंड यू नो काइंड ऑफ एंटाइस्ड हिम इनटू दैट. बिल्कुल. आई थिंक कि जिस तरह डेविड मलान ने कवर में कॉन्स्टेंटली 3-4 बॉलें, उनके चौके जो शॉट्स थे वो रोके, तो नेचुरली उससे प्रेशर क्रिएट होता है विराट जैसे बैट्समैन के ऊपर, यू नो. और बहुत ही ज़बरदस्त उन पे अटैक किया गया, उस लाइन को, लेंथ को मेंटेन किया गया. अब यहाँ देखिए कवर में काफ़ी दफ़ा बॉल गई है. शॉट जो थे ये नॉर्मल हालात में इसके चौके होते हैं. आई थिंक ये प्रेशर क्रिएट हुआ था. डॉट बॉल्स इतनी खेले, 9 मेरा ख्याल है डॉट बॉल खेले, उसके बाद ये आउट हुए, यू नो. आई थिंक कि वो जो प्रेशर था, रन ना मिल रहा, पहला रन ही नहीं मिल रहा था इनको,
उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये आके थोड़ा सा प्रेशर में आए और उन्होंने एक अननेसेसरी हिट मारी है उस प्रेशर से निकलने के लिए कि किसी तरह बाउंड्री मिले तो थोड़ा सा प्रेशर रिलीज यहाँ करें। तारीफ करनी पड़ेगी डेविड विली की, जो आपने अभी क्लिप दिखाया, आप उसकी लेंथ देखें, उसने सारी की सारी गेंदें वही जो नैकिंग लेंथ जैसे हम कहते हैं, जिस पे ना बैट्समैन आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। ये देखिए जो ग्रीन पैच आपको दिखा रहे हैं, दिस इज 6 to 8 मीटर लेंथ में भी स्लाइटली फुलर एट दिस स्टेज ऑफ द गेम, बिकॉज नया बैट्समैन आया था, अर्ली ऑन इन द इनिंग्स था, बट लुक एट नथिंग आउटसाइड ऑफ स्टंप, एवरीथिंग इज आइदर लीविंग द स्टंप or either coming back into the stump, and like Moin said, that's what created pressure. Pressure and probably frustrated Virat, That's because it's what not his pressure is natural all game, about. right? He Yeah, wants to. ये हम पाकिस्तान के अगेंस्ट भी है, उससे पहले भी बात करेंगे। एक ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी है उनके अगेंस्ट। जो भी ऐसा बैटर आता है जो ही वांट्स ऑफ स्ट्राइक अर्ली ऑन, 8 बॉलों पे कोई रन नहीं, आपको सिंगल नहीं मिला। नॉर्मली वो ये शॉट खेलते नहीं है, बट उन्होंने बेसिकली वो जो फील्ड के ज़रिए ऐसा प्रेशर डाला कि ये शॉट मारनी पड़ेगी, या तो ऊपर से मारेंगे या हम रन नहीं देने वाले। Yeah. So basically that was good bowling and good fielding. अच्छा, अब आ जाते हैं अय्यर के ऊपर। It looks like Iyer is the only person who, or perhaps, and again, no disrespect, but in the great scheme of things here, he looks like the weakest link right now in this World Cup. Yeah, he has to perform because Ishan Kishan bahar baitha hua and he's a left-hander. Right. Remember the first game in Asia Cup he played against Pakistan, him and Hardik Pandya ने एक partnership लगाई थी, जहाँ 21 ओवर पाकिस्तान टीम ने spinners को करा दिए थे in the mid. So you know he can bat. He's an opener, but he can bat in middle order as well. यही मैं कहता हूँ आजकल के young लड़कों को, young cricketers को, not just in Pakistan, all over the world. At this in this day and age, you'll be able to bat at any number. From as an opener to number 3 to number 4 to number 5 to number 6. वसीम भाई कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने भी आना है फिट होके। मैं actually, so I was going to, Misbah, I was going to bring you this question exactly because today Sky has performed. Yeah. So now if Hardik Pandya comes back into the team, it's most likely that Sky will remain in the team with Hardik Pandya. And if anybody that looks, as I said, as the weakest link is Iyer, that will probably have to. मुझे पहले दिन से ठीक है उसने रन्स किए हैं, अपनी एक ओपिनियन भी होते हैं। मुझे पहले दिन से लगता है कि केएल राहुल नंबर 5 पे बहुत लेट है। इज द क्लास ऑफ प्लेयर, नंबर 4 केएल राहुल होना चाहिए, और अगर वो 4 पे आता है देन हार्दिक पांड्या कम्स इन, तो फिर आप नीचे के 2 प्लेयर जो हैं 5वें 6ठे पे, आजकल की क्रिकेट में जब अच्छी पिच आएगी फिर ये सूर्य कुमार यादव और साथ उनके ऑलराउंडर आ जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल फिर बड़ी मुश्किल सिलेक्शन हो जाएगी इनकी। मुझे लगता है, बट उससे स्कोर किया, अभी भी वो रन्स करके आए 100 करके, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट मेरे ख्याल में 100 किए, तो वो रेट करते हैं उनको। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो उनकी जो एवरेज है अगेंस्ट फास्ट बॉलिंग दैट इज़ अराउंड 19-20, और शॉर्ट बॉल पे एक आपको नज़र आ रहा है पिछले मैच में भी वो पुल करते हुए आउट हुए। जब ऑब्वियस कोई वीकनेस आपकी सामने आ जाए ना, तो फिर सारी टीमें आपको वहीं पे अटैक करती हैं और उसको वो अवॉइड भी नहीं कर रहे। लुक एट दिस अगेन, दिस आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं। अगेंस्ट भी शॉर्ट बॉल पे वो स्क्वायर लेग पे कैच हुए बाउंड्री पे, एंड देन अगेन टुडे, और जो बात भी हो रही थी कमेंट्री में, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मुझे शॉर्ट बॉल होनी है, तो कई दफ़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जो पुल वाला नहीं भी होता जैसे आज था, उस पे भी उन्होंने ये शॉट कमिट कर दिए। सो यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट शॉर्ट बॉल, देन यू आर इन ट्रबल। Look at this. This is him. Again, look at the lengths they are bowling at. Yeah, Vokes has been just amazing today. अगर आप उनका फ्रंट फुट देखें ना, पहली मूवमेंट के बाद गोज नोवेयर, वो फ्रंट फुट पे उतना नहीं जाते, और ये शॉर्ट बॉल भी फिर उनके लिए प्रॉब्लम, वो पोजीशन में नहीं होते। Right. So, well, that does that for him. And with that, we're going to take a break here on the Pavilion. But when we come back, we'll talk about the English innings and how it went down. Don't go away. Keep watching. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app and the news out of Lucknow. India winning another game and moving on towards the World Cup finals. That's what it looks like. They're unstoppable at this time. England, they have a lot of things to talk about, worry about,
and probably go back to the drawing board. इस वक्त मेरे साथ pavilion के अंदर मौजूद I've got Misbah, Moin Khan and Wasim Akram, and let's talk about that India defense, or rather the English chase, right? Now it looked like this should be an easy chase, but it was not to be, Wasim. It wasn't. मुझे पता 230 हो गया, that's enough. 229, 230 to win on this pitch and with Indian bowling. But ये नहीं था पता कि England ऐसे हाथ ऊंचे करके हारेगा. One-sided loss with so much experience. What's the point having 9 or David Willey, who opens for his county in shorter format in white ball, batting at number 9. अगर आपके पहले 6 ने कुछ नहीं किया, नंबर 9 ने भी कुछ नहीं करना. और लिविंगस्टन बैटिंग एट नंबर 7. ही इज अ प्रॉपर बैटर. या तो उसको ऊपर बैटिंग कराओ या उसको ब्रुक is not even in the playing 11. The guy who got runs, the guy who's the future of English cricket, not just in white ball cricket, in red ball as well. He is the player to watch for the whole world. Yeah. And he's sitting outside warming the bench. And not to forget Adil Rashid, he has 10. अगर किसी ने मुझे दोबारा कहा कि आदिल रशीद की 10 सेंचुरी हैं, वो मैंने ही कहा था. एक्चुअली लाए आप ही थे मार्केट में, अब आप मुक्ते हैं. 20 सेंचुरियां भी हों और बंदा 10वें नंबर पे है तो मेरे ख्याल में 10 ही कर सकता है. I think it's a stats world now. So when you talk about a certain batter, suddenly stat देखते हो 10 होने आते, you feel like you got to mention it. Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं? मैं किया, मैं नागा. That is Bumrah for you on your screen. That's Bumrah. Look at that, Wasim. Wow, look at this. Was his first over, if I'm not mistaken. In swings, couple of outswings, and then this one. That was a beauty. I was watching that. Look at the length. Look at the length and look at the seam position. I totally Bumrah ने गुमराह कर दिया. हाँ, उनको गुमराह कर दिया. क्या ball seam हो रहा है? Beautiful around the wicket, unplayable to the left-hander. Wow, and then he finally got. And that's how you create pressure. Inside edge पे लगा है, massive in front of stumps, every shot. And again, look at this. Yorker at will. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है. नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर निकालना, जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं. दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है. पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very difficult. You see, जब मैं it's like Bumrah bowling to a left hander around the wicket. इधर से आके वो जब बॉल करता है तो उसकी सीम ऐसे होती है, जो सीम ऐसे होती है वो ऐसे लाके मारता है ये. इसलिए जब वाइड ऑफ द क्रीज जाके लाओगे राइट हैंड को तो उसको लगेगा बॉल अंदर आ रहा है, तो एंगल से वो खेलने जाएगा. जब अंदर पड़ के ऐसे बाहर निकलेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने बीट ही होना है. एंड जब मैं राइट हैंड को आउट स्विंग करता था नॉर्मल नए गेंद से, कई दफ़ा कंट्रोल नहीं था होता, तो मैं भी ऐसे पकड़ के ये रिस्ट मारता था और यहाँ से अराउंड द विकेट, ताकि ऐसे अंदर आए और पड़ के ऐसे बाहर निकले. बट बुमराह डेफिनेटली गॉट बेटर कंट्रोल विद द न्यू बॉल देन माई सेल्फ. दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना. No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है. वो कोई मैंने ऐड असो कर ओवर जरा नहीं करता तो हम उधर का टारगेट करेंगे. उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उसे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले जाओ, और कोई हल नहीं. I know. And then when Bumrah starts going from one end, Wasim, Moin, how much confidence his fellow operator on the other end gets, and look how Mohammad Shami was operating from the other side. कोई एक तरफ सांप, एक बंदा जो है वो बीन बजा के सांप की तरह बॉल फेर रहे हैं. बैटिंग में पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी तरह बॉलिंग में भी पार्टनरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली न्यू बॉल पे तो बहुत ही ज़्यादा होती है. अगर एक एंड से एक बॉलर प्रेशर क्रिएट कर रहा है या विकेट्स ले रहा है और दूसरे एंड से प्लेयर उसको मारना शुरू हो जाए, अटैक काउंटर अटैक बेहतर हो जाए, या उनको ऐसी जगह पे बॉलें मिल जाए जहाँ पे वो इजीली कन्वर्ट कर सके उन बॉलों को बाउंड्रीज के अंदर, तो नेचुरली वो पार्टनरशिप बिल्डअप नहीं हो सकती. तो यहाँ पे
जिस तरह बुमराह ने आके बॉलिंग की थी, सिराज ने भी अच्छा स्टार्ट दिया, ऑल्दो कि जो पहली विकेट थी वो 30 रन पे ज़रूर गिरी है, थोड़ा सा स्टेबिलिटी नज़र आई थी इंग्लैंड की बैटिंग के अंदर, लेकिन I think quality of bowling was outstanding. Totally. I think they meant business today कि आज मैच जीतना है, उनको पता था पिच का, ये यकीनन कप्तान ने जिस तरह की इस पिच के ऊपर इनिंग खेली है, 36 ओवर वो पिच पे रहे, उनको पता था कि इस पिच पे अगर आपने रन रोकने हैं तो किस लेंथ पे बॉलिंग करनी है। आई थिंक ये वो जो लेंथ मेंटेन किया ना, वो लाइन मेंटेन किया, वाज गुड। ये शामी की बॉलिंग आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं आज, उन्होंने वर्ल्ड कप ये 4 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं आज। जस्ट द वे ही हिट्स द सीम, देखें हर बॉल पे सीम लगती है, वही जो मिसबा और मोइन हम बातें कर रहे हैं तीनों पिछले आधे घंटे से कि लेंथ। आई मीन इसका मैं रिकॉर्ड आपको बताऊं, 13 मैचों में वर्ल्ड कप के सो फार ही इज गॉट 40 विकेट्स। That's a lot of wickets. Exceptional. 14 की एवरेज से मिसबा। मैं एज ए बैट्समैन अगर देखूं तो देखें ये जो स्विंग कहीं ना कहीं आप मैनेज कर लेते हैं एज ए बैट्समैन, क्योंकि हाथ से निकलते हुए नज़र आता है आपको, आपके पास ऑलमोस्ट 20 मीटर का डिस्टेंस है टू रिएक्ट। जो सीम बॉलर होता है वो 5 मीटर से होना गेंद ने, आप पूरा लाइन में आया है ऐसे बॉल की, एंड सडनली व्हेन इट जस्ट मूव्स फ्रॉम द सीम लगी और एकदम गेंद मुड़ा है यूं, और ऑफ द विकेट हम बात करते हैं ना कि तेज होता है, स्विंग इज इन द एयर एंड सीम इज जब बॉल सीम लगती है और ऑफ द पिच जैसे स्पिन होता है पिच पे लगने के बाद, तो वो क्योंकि आपके पास डिसीजन मेकिंग का टाइम नहीं है ना, 5 मीटर से मैं तो अपना जिस लाइन में बॉल किया ना मैं आ चुका हूँ, अब अगर वहाँ से मूव अंदर या बाहर होगी तो मेरे दोनों जो एज हैं बैट के वो उसको बीट कर सकता है बॉल, और बॉल ऑफ द पिच उनका बॉल ऐसे लगता है डबल स्पीड होगी ये गेम। हाँ, वो पढ़ के तेज हो गया, जैसे स्किड करके कोई अचानक निकलता है। ये हम अक्सर टर्म्स यूज करते हैं कि ऑफ द पिच तेज है फलाना बॉल, राइट। ये बेन स्टोक्स की क्या मुझे कुछ समझ नहीं आई। एक तो उन्होंने बेशक शामी ने उन पे बड़ा प्रेशर रखा, बट द वे ही प्लेड दैट शॉट दैट इट वाज लाइक ओके आई जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हियर, आई कांट डील विद दिस। I think he was comfortable being a test captain, enjoying his test cricket, retired from ODI. They requested him कि please take a retirement back for this World Cup. Maybe his heart is not there, especially the way they started their World Cup campaign to defend the campaign. We know they're the defending champion, but that was 2019. New ball game, new teams, new players, new different environment. So every time you have to start from scratch. ये दोबारा आपकी स्क्रीन पे देखिए, लेग उन्होंने टांग लेग स्टंप के बाहर लेके, ये बिल्कुल थोड़ा सा मैं कहूँगा कि कोहली जैसे हिट मार के आउट है, ये भी बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो क्या, पहली 9 बॉलें बिल्कुल आई मीन एक रन नहीं बना सके थे, ये भी इसी वजह से as if he wanted to slog it and just get us something on it and देखिए कोहली और इसका फर्क जो एक मैं बात करूंगा कि they were basically setting a target, तो प्रेशर बिल्ड हो रहा था। ये सेटअप देखें मेरे मिसबा, क्या जबरदस्त सेटअप किया है शामी ने। उनके पास तो एक टारगेट था कि हमने 50 ओवर खेलने हैं सिंपली टू गेट दिस टारगेट। ठीक है, सीम हो रहा है बॉल, तो थोड़ी देर के लिए हम टेस्ट मैच खेलते हैं, ये जब तक गेंद हार्ड है लेट द ड्यू कम, थोड़ा सेंसिबल, थोड़ा जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब तक आप कंडीशंस को और अपोजिशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे एट टाइम्स, तो फिर आप अपने आप को मुश्किल में डालें। भाईजान एक सवाल है, 34 ओवर तक ड्यू तक कोई वेन्यू इफेक्ट नहीं नजर आया। ड्यू वाज देयर, इट वाज देयर, बट इट हो गया था, बहुत बेहतर हो गया था, लेकिन ऑलमोस्ट वहां तक आपकी गेम निकल, आपके सारे बैट्समैन दे शुड हैव गॉन डीप, यू मीन, एंड दे कुड हैव प्लेड फर्स्ट 15-20 ओवर्स लाइक टेस्ट क्रिकेट। दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट, 60 से 80, 70 से 80 करना है 20 ओवरों में। दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट, पहले 3 ओवरों में ऑलमोस्ट 20 प्लस रन हो गए। सिराज का बड़ा एक पहला ओवर जो उन्होंने जी पहला ओवर सिराज का, वो उसमें 10 रन से ज़्यादा, उसको 3 के 4 चौके पड़े हैं पहले 2 ओवरों में, तो दे हैड द स्टार्ट। उसके बाद उनके पास टाइम था कि वो थोड़ा सा दूसरी तरफ से अगर बुमराह अच्छी बॉलिंग कर रहे थे तो उनको प्रेशर को उसको थोड़ा वहाँ पे झेलते और निकाल के लेके जाते। द वे रूट प्लेड, आई थिंक फर्स्ट बॉल ही वाज जस्ट फॉलिंग ऑल ओवर द प्लेस, ऑफ स्टंप की तरफ, और सीधा बॉल बुमराह ने इंटेलिजेंटली विकेटों में किया, जस्ट लॉस्ट द विकेट। इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ द इंडियन bowlers were playing chess.
with the Yeah, I agree English with you. batsmen, right? बात कर लेते हैं जरा कुलदीप यादव की, because Kuldeep Yadav is also a very integral part of this bowling attack. Again today, just 24 of 8, greatly done. But I want to share something with you, gentlemen. 2019 से 2021 से कुलदीप यादव ने 14 ODIs खेले और सिर्फ 14 विकेटें उन्होंने ली थी at 57.42 apiece. And in those, उनकी इकोनॉमी 6.18 होती थी उस वक्त. But the Indian board stuck with him, the Indian team stuck with him, and this year he has taken 43 wickets in 23 ODIs alone, just this year alone. And he's taken 10 wickets at an average of 26 points. In this World Cup alone, that's He had to go to NCA, Right. work with the great man Lakshman, VVS Lakshman. Yes, He's VVS heading the NCA of Bangalore में जो base है, बड़ी ज़बरदस्त एकेडमी है BCCI की. उससे पहले द्राविड थे, उससे पहले गंगुली थे, रवि शास्त्री थे. Big names head that academy. वहाँ गया है, वहाँ उन्होंने इस पे काम किया, इसकी पेस पे काम किया है. Right. पहले ये थोड़ा स्लो कर रहा था. Since then onwards, he said in his interview कि मैंने पेस को थोड़ा तेज़ किया है. जब तेज़ किया है तो इसका मतलब बाजू थोड़ा तेज़ घूमेगा, तो आपको जो पढ़ना होता है लेग स्पिन का, गुगली है कि लेग ब्रेक है कि फ्लिपर है, वो मुश्किल हो रहा है. और एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू यू गाइस थिंक कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर आर डिफ़िकल्ट टू रीड? जैसे ये हो गया, कुलदीप ने पाकिस्तान को भी तंग किया एशिया कप में, इसमें भी किया. देन यू हैव तबरेज़ फ्रॉम साउथ अफ्रीका, इज गॉट 4 विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान. देन नूर अहमद, इज गॉट विकेट्स अगेंस्ट पाकिस्तान. मुझे लगता है पाकिस्तानी हो गया. बट इसके ऊपर ना बात करते हैं. वी गोइंग टू टेक अ ब्रेक राइट हियर. व्हेन वी कम बैक वी विल टॉक अबाउट दिस एंड मच मोर. डोंट गो अवे. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the Hours app. And before going to the break, we were talking about wrist spinners. Wasim, you had a question? You want to repeat that? दोनों से पूछा था, वो शेबी तो हमें सुबह ज्वाइन करेगा, कि ये जो लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हैं, जैसे कुलदीप हो गया, तबरेज़ हो गया, आजकल इंटरनेशनल नूर है, इन तीनों ने पाकिस्तानियों को वो तो एशिया कप से तंग कर रहा है, और इस वर्ल्ड कप में भी तबरेज़ ने भी 4 आउट किए हमारे, नूर ने भी 3 आउट किए. सो रीज़न क्या है? इसको इम्प्रूव भी तो करना है हमने मिसबा. एनी सजेशंस बाय बोथ ऑफ यू? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब कोई भी चीज़ आपकी डेफिशिएंसी हो जिस चीज़ में, आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले, मैं 10-12 सालों की बात करूँगा, इस किस्म का कोई बॉलर नहीं था. रिसेंटली 2 बॉलर हैं. एक तो अभी अंडर 16 से आ रहा है फैसल अकरम, जिसको अभी भी कंसिस्टेंट चांसेस नहीं मिल रहे, और इतना ज़्यादा वो बॉलिंग करता नहीं कहीं पे भी हमारे इन बैट्समैनों के अगेंस्ट. हमने उसको प्रैक्टिस मैचेस में पाकिस्तान के अगेंस्ट उस टाइम पे बुलाया था, तो उस वक्त भी सबको प्रॉब्लम होती थी उसको पिक करने में, नेट्स में मसला होता था. दूसरा सुफियान मुकीम, जो अभी रिसेंटली शाहीन्स की तरफ से खेल रहा है. तो बात वहीं पे है कि आप जब खेलेंगे नहीं एक बॉलर को, यूज़ टू नहीं होंगे, हमेशा आपको मुश्किल होगी उसको पिक करने में. एक तो बैट्समैनों को खुद एफर्ट करनी है. दे आर हार्ड टू पिक? व्हाई? वजह यही है कि जब जो चीज़ कम होगी, आप उसको खेलते ही नहीं है, आपकी प्रैक्टिस नहीं है, इस वजह से आपको हाथ भी पिक नहीं होता उनका. और दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैट्समैन अब जो है हमारे स्पेशली, वो रिस्ट स्पिनर को कम खेलते हैं, थोड़ा सा हाथ को उस तरीके से वॉच नहीं करते. अगर मुझे अपने उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे स्पिनर्स ऐसे लेग स्पिनर्स भी होते थे जिनकी कि क्लियरली आपको गुगली चेक नहीं होती थी. आप राशिद हैं जैसे आजकल, तो बहुत क्लियरली आपको ये सईद अजमल जैसे ऑफ स्पिनर दूसरा करते थे. हमारे दौर में नेट पे मुशी की समझ आ जाती थी, नेट की बात कर रहा हूँ. हाँ. और भी जो आते थे, मगर दानिश कनेरिया की मुझे गुगली समझ नहीं थी आती. तो उस नेट में भी उसमें वसीम भाई, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने बहुत क्लोजली देखना है बॉलर को, क्लोजली देखना है, उसके रिप्लेस भी देखने हैं, उसको नेट वैसे भी देखना है. आपने कोई सटल चेंज पिक करनी है. बॉडी, जब आप रिस्ट स्पिनर देखें, ये जब पूरा अंदर ये लेग स्पिन करते हैं तो पूरी बॉडी लगती है और गेंद बहुत तेज़ घूमता है. जब ये गुगली करते हैं तो वो स्लो होता है, और फिर डिफरेंट बॉडी थोड़ा सा डिफरेंटली मूव करती है. लाइन से आपको पता चलता है. कुलदीप को अगर आप देख लें, थोड़ा ऑफ स्टंप के बाहर जाते हैं या ऑफ स्टंप के सामने से करते हैं, तो वो
अंदर आता है बॉल और गुगली ये आपके नॉर्मली स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको ये दिखा देखिए अब ये लाइन से अंदाजा हो रहा है ये- कि यहाँ से कभी भी वो गुगली नहीं करेगा ना, वो करता है मिडल से करेगा। मिडल से करता है, लूर करता है बाहर से, लेकिन इसका बहुत क्लियरली जब भी ये गुगली करते हैं वो मिडल लेग से करते हैं, मिडल स्टम्प से करते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बॉल को भी देखना है, लाइन को भी देखना है, कोई एक क्लू आपने पकड़ना है, फिर उसको आपने देखते हुए अपने आप को बैक करना है कि जी कौन सा गेंद। अगर फिर भी नहीं पिक हो रहा तो सिंपल इज़ दैट कि यार जो गेंद थोड़ा सा ऑफ स्टम्प से अगर आ रहा है तो मैंने उसको, जैसे बटलर ने गलती की स्क्वेयर ऑफ द विकेट क्यों खेलने, आप उसको कोशिश करेंगे मैंने सामने खेलने जाना है, अंदर खेलने जाना है, एटलीस्ट मैं आउट नहीं हूँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो मेरे ख्याल में आप रन्स भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपके पास एक रिलीजिंग शॉट भी ऐसे ओपोनेंट के खिलाफ होना चाहिए कि आप उस प्रेशर से तो निकले, आप एटलीस्ट नॉन स्ट्राइकर पे जाके अपने प्लान आउट करें आगे की किस तरह हमने टैकल करना है। तो हमारे बैट्समैनों को इशू ये आता है कि एक तो बहुत ही स्पिनर्स को बहुत हार्ड ग्रिप से मैंने देखा है खेलते हैं, थोड़ा सा ग्रिप को भी, ग्रिप का मतलब थोड़ा बहुत सख्त पकड़ते हैं, बल्ला बहुत सख्त आप जब पकड़ेंगे। फास्ट बॉलर पे तो इट्स ओके कि फास्ट बॉलर, बट स्पिनर्स पे आप सख्त बल्ले से नहीं कर रहे हो, स्पेशली उस पिच के ऊपर जहाँ पे टर्न हो रहा हो, वहाँ पे आपके फिर शॉट्स पे परफेक्शन नहीं आती, थोड़ा सा स्लाइटली विद स्पिन नहीं कर। अगर आप देखें आप जब ग्रिप करते हैं तो आपकी जो रिस्ट है वो लॉक हो जाती है। फिर यार वो तो दस नहीं ਜਦੋਂ मैं खेल रहा था हम तो ये समझते थे, आप बताएंगे हमें। लो जी वेट ही करते रह गए, वो मैंने दसेगा वो सानू दसेगा, वो कुछ हुआ ही नहीं ये के चक्कर में। But you guys did enough damage in your time with that. You know what, gentlemen, I think we're going to wrap this up, but outstanding performance by India one more time. They are right now, without question, they look like an unbeatable team. They look like champions. And if this goes on for another few matches, they will be world champions. Good luck to the Indian team and congratulations to Indian fans around the world. You should be very proud of your team and celebrate that. To English fans, well, yeah, there is a lot to be done. Got to go back to the drawing board and chalk out a new plan. But you've done it before. In 2015, when a debacle happened, in 2019, you rose to be champs. You could do it again. Right, Moin, what is the way forward for England? They'll have to wait for 13 more days to make any plan. Any plan? 13 दिन wait करें? 13वें दिन उनका last match है. I think there is no hope for them in the tournament so far. I understand जिस situation से सारे इस वक्त go through होंगे, इंग्लैंड से कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था इस तरह की परफॉर्मेंस होगी, बट आई थिंक ये सिलसिला तो चलता रहेगा। इंटरेस्टिंगली इंग्लैंड का आखिरी मैच पाकिस्तान से, और वो पाकिस्तान का भी आखिरी मैच है इस टूर्नामेंट का। दैट वुड बी अ गुड वन, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। बट एक पूरा जिस तरह हमने थ्रू आउट बात की है, बहुत से प्लेयर्स को जाना होगा। गुड वन मिसबा। बहुत से प्लेयर्स को जाना होगा और नए प्लेयर्स को इंडक्ट करना होगा। अभी पता लगा है कि मैथ्यू मॉट इज द इंग्लैंड कोच, isn't he? He just confirmed that he learned that qualification criteria for the Champions Trophy about 90 minutes ago. अच्छा, उससे पहले उसको पता ही नहीं था? नहीं। लो तो हम वो अफगानिस्तान के ऊपर एक दफा याद है कि उनको कोचेस को नहीं पता था कि क्या था, तो इधर तो इंग्लिश नहीं है। मेले ते आए हो ऐसा? I know, I have no idea. That's so 3 strange. हफ्ते तो हम चीख रहे हैं। That's really हमारा strange. शो ना देखो, टीवी पे वहीं कुछ देख लो। That's true. In case अंग्रेजी में मैं कह देता हूँ, English team, next time please watch our show. Right on, and with that we'll take a break. We'll see you on the other side. When we come back, it's going to be. Oh, sorry. You did finish the way forward. See, Wasim, you always confuse me. And that, तो सी मेरे जलसे दे पथराओ के ही रहो। देखो आजकल पाकिस्तान में एक चीज बड़ी खबर है कि जेड़ा जिन्नू गाल करो ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ। हाँ। दे दी और क्या जान लोगे भाई? उनके कोच को नहीं पता था। Right in the middle of the segment, the way forward. And with that, we're going to take a break. But when we come back, it's hashtag Ask the Pavilion. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. Send us your questions, your comments. We'll see you back in the pavilion in a few moments.
Hello, welcome to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Airways app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. News out of Lucknow, India unstoppable and marching along just fine. England, a lot of things to worry about. And with that, it's time for your favorite segment, hashtag Ask the Pavilion. और शुरू करते हैं hashtag Ask the Pavilion. दानिश अलवी, आपका ट्विटर एक्स हैंडल है @DanishAlvi3. मेरा सवाल आपसे ये है कि हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? क्या स्किल्स नहीं है? हमारे बॉलर्स का पेस ज़्यादा है, फोकस कहीं और है, या वो मेहनत नहीं करते? जी फास्ट बॉलर साहब जवाब दें. हमारे बॉलर्स बुमराह की तरह बॉलिंग क्यों नहीं करते? उनका पेस ज़्यादा है, मगर उनका क्या स्किल की कमी है? क्या वजह है? या फोकस कहीं और है? इजाजत. It's a very difficult question to answer. Bumrah is probably one of a kind. दुनिया में कोई उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहा कि हमारे क्यों नहीं करते. हमारे लंबी क्रिकेट हम खेलते हैं, बुमराह टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है. अब इंजरी के बाद आके अभी तो वनडे खेल रहा है, बट टेस्ट क्रिकेट भी खेलता है, उसमें भी उतना ही सक्सेसफुल है. तो जब तक आप लंबी क्रिकेट में आउट नहीं करोगे, पांजे आके नहीं लगाओगे, तो आपका वो बैट्समैन को फॉक्स आउट करना, स्पेशली आफ्टर 10 till the 40th ओवर इन ODI can get difficult. That's where the problem is. Length consistent नहीं है. थोड़ा सा एक्शन भी वसीम है, मेरा ख्याल है उसका थोड़ा सा चेंज है. Very odd action. Conventional bowlers Very different action, yeah. तो उससे भी उसको नेचुरली हेल्प जरूर मिलती होगी नए बॉल उसके साथ कंट्रोल रखना, बाहर अंदर, पेस, यॉर्कर, बाउंसर, it's just complete. Yeah. अच्छा जी, AQ खान @Abdul QA 96260625 आपका एक्स हैंडल है. AQ खान सवाल कर रहे हैं मोइन खान से, Why didn't you retain Saim in last year's PSL and bench Saud for the whole PSL? Saud can play a similar role like Babar in the T20s. Another question, will Khurram Shahzad be a good choice for the Australian tour? Right जनाब, ये सेकंड पार्ट जो वसीम भाई आपसे पूछा खुर्रम शहजाद के हवाले से, और आपसे उन्होंने पूछा कि आपने साइम को क्यों नहीं रिटेन किया था PSL के अंदर, और आपने साउद को क्यों बेंच रखा पूरे PSL में? पहले मैं साइम का जवाब दे देता हूँ आपको. साइम को जिस वक्त हमने लिया था तो उसको पूरा फुल फ्लैश चांस दिया उसको. अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मे बी कह ले कि लिटिल बिट इमेच्योर, शायद उसको अर्ली ऑन चांस मिल गया था, वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर सका उस सीज़न. तो इसी वजह से मेन आपको पता है कि इसमें आपको 8 प्लेयर्स रिटेन करने होते हैं एंड उसके अलावा आपको सबको रिलीज़ कर देते हैं टूवर्ड्स ड्राफ्ट. तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी उस वक्त उसकी फॉर्म देखते हुए, इस वजह से हमने सिर्फ नहीं किया था. बट देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज टैलेंट, ही इज़ वंडरफुल प्लेयर. मैं हमेशा ये कहता हूँ जो प्लेयर होता है वो कहीं ना कहीं से निकल के सामने आ जाता है, परफॉर्म करके सामने आ जाता है. ऑलराइट. और अहमद शहजाद की वो बात कर रहे थे, खुर्रम शहजाद, एक मिनट सॉरी, सऊद की बात कर रहे थे. सऊद को भी इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि सऊद के टेस्ट क्रिकेट में रन्स थे, तो हमने अपने कॉम्बिनेशन के अंदर, मेरा नहीं ख्याल है कि उसकी उस वक्त जगह बनती थी, और इस वजह से सिर्फ नहीं खिलाया. टीम में क्यों लिया था फिर उसको? टीम में क्यों लिया था? आपको तो स्पेयर प्लेयर्स तो रखने होते हैं ना टीम में, इस वजह से रखा हुआ था. ठीक है. और कहीं भी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि हम उसको खिला सकें, क्योंकि आपको पता है कि कुछ कैटेगरीज होती हैं, उस हिसाब से आपको टीम बनानी पड़ती है. जी सर. खुर्रम शहजाद की बात कर रहे हैं. खुर्रम शहजाद फास्ट बॉलर जो हैं, मैंने उनके 4 डे में मैंने उनको देखा नहीं, मैंने उनको सिर्फ T20 फॉर्मेट में देखा है. मिसबा कैन एक्सप्लेन इट बेटर अबाउट हिम. अच्छा बॉलर है, लंबे स्पेल्स करता है, और अब काफ़ी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल भी रहा है पिछले 3-4 सीज़न से. तो देखना पड़ेगा. अब हम जब बात करते हैं कि अभी तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा कि आपने कौन से 5 बॉलर लेके जाने हैं वहाँ पे, तो फिर ये नाम आ गया ना एक, देखिए आवाम दे रही है अब आपको नाम. अब जो लड़के परफॉर्म कर रहे हैं वो अमीर हमजा है या फिर खुर्रम शहजाद हैं, ये 2-3 लड़के हैं जिन्होंने परफॉर्म किया यहाँ पे. तो सिलेक्टर्स डेफिनेटली विल बी लुकिंग. 4 डे क्रिकेट में जिसने परफॉर्म किया उसको आपने देखना है जाहिर है आगे टेस्ट मैचेस के लिए. तो पेस इतनी है मिसबा के, आप जिस तरह हम कल बात कर रहे थे, बॉल्स अराउंड 135 जी. स्किडी है, थोड़ा स्टेन से मिलता जुलता उसका रन अप है. बॉल क्या होता है? नया बॉल आता है राइट हैंड, नहीं आउट स्विंग होता है, दोनों वैसे करता है. बट ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए थोड़ा सा जिसका बाउंस ज्यादा हो, जिसके बॉल में, ठीक है, वेरी गुड, बॉलर्स वो ज्यादा डिफिकल्ट. एंड मिर्जा Any_Mirza आपका एक्स हैंडल है. मोइन खान, ये सवाल भी आपसे है. मोइन खान साहब, यू वर थिन एंड स्मार्ट विकेट कीपर. Why don't you encourage Azam regarding his fitness? We want to see him in the Pakistan team. Why he doesn't
why doesn't he get a chance to play as other friends of the captain for the last 4 years? Please answer that. आज़म का बहुत दफ़ा मैं जिक्र कर चुका हूँ, अपने कोलीग क्रिकेटर्स के साथ भी कर चुका हूँ, बिकॉज एज अ फादर मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होता है, मैं कन्विंस करने की कोशिश बहुत करता हूँ. ही इज़ अ ग्रोन, बिल्कुल उसको खुद आइडिया होना चाहिए, उसको बहुत सारी एग्जाम्पल दे के समझाए कि जितना तुम्हें टैलेंट मिला है बट तुम उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे हो. आई थिंक लिटिल बिट ऑफ रिलैक्स नेचर, यही मैं कह सकता हूँ. अदरवाइज जो भी मैंने सीखा है या कोलीग्स उसको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं, बट जिस तरह वो है वो इसी तरह अपने आप को मेंटेन करता है, कहता है आई एम अ मैच फिट. Perfect. क्या कह सकता हूँ. Perfect. Next up, absolutely not at F Wahabri, आपका X handle है. आपका सवाल है, great show as always, full marks. I have a question for the entire panel. What does it mean खिंचा हुआ बॉल और रुक के आने वाला बॉल? I hear this term a lot on your show. Would like to know what these terms technically mean if you can demonstrate. So if you could demonstrate. वो ball demonstrate नहीं बता सकते. Length पे ना वो maybe Misbah can stand and say. तो पूरा मैच ही ना खेल लिए. चलो. Misbah बैटिंग करेगा. ऐसे इधर से बता दो थोड़ा. अच्छा इधर से बता दें. It's very simple. खिंचे हुए बॉल का मतलब ये है जो आप ना तो फ्रंट फुट पे पूरा उसकी पिच पे पहुंच सकें उस बॉल की, यहाँ बॉल पड़ा है, ना वो प्रॉपर बैक फुट पे खेलना, इन बिटवीन आपको फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट खेलना पड़े या बैक फुट डिफेंसिव शॉट खेलना पड़े, दैट इज़ खिंचा हुआ बॉल, गुड लेंथ जिसको हम कहते हैं. क्योंकि आगे अगर होगा मुंह में तो आप उसको ड्राइव मार देंगे फ्रंट फुट पे, स्लॉट कहते हैं. बिल्कुल. और अगर थोड़ा सा बैक फुट पे होगा तो बैक फुट पे आप कट या पुल मार देंगे. राइट. तो इन बिटवीन वेयर आपकी डिफेंसिव टेक्निक चैलेंज होगी. So how can young bowler improve on that length we talk about consistently खिंचा हुआ back of a length? टारगेट बॉलिंग करनी है आपने, लंबी टारगेट बॉलिंग, लंबी क्रिकेट खेलनी है. फर्स्ट लंबी क्रिकेट से पहले आपने वो स्किल डेवलप करना है, क्योंकि लंबी क्रिकेट में तो आप किसी भी टीम को मरवा देंगे जब बगैर उस स्किल के जाएंगे. आपने वो 5 मीटर की लेंथ पे रखना है निशान. आजकल मार्कर्स मिलते हैं, चौक से लगा दें, कुछ भी लगा दें. उसके बाद आपने विकेट का कॉरिडोर बनाना है, ऑफ स्टंप एंड फोर स्टंप. वहाँ पे कोई ना कोई मार्क रख के कंसिस्टेंटली उसको हिट करना है आपने, विद द न्यू बॉल, विद द ओल्ड बॉल, तब जाके आपकी वो कंसिस्टेंसी. और मिसबा फंसा हुआ बॉल वो पूछ रहे हैं कि फंसा हुआ बॉल क्या होता है? फंसा हुआ बॉल इज सेम, जो पड़ के वो जो रुकता है बॉल, हम वो एक अलग चीज है कि क्रॉस सीम जैसे पकड़ के करते हैं आप, सीम लगती है, रुकता या है पिच कोई ऐसी होती है जिसमें फंस के निकलता है. फंसा हुआ बॉल जो ये कह रहे हैं ना, मैं जो समझा हूँ वही सेम खिंचा हुआ या फंसा हुआ बॉल. यानी नहीं, उन्होंने कहा ये दो अलग टर्म्स हैं. खिंचा हुआ बॉल हम बात करते हैं, हमने कहते हैं फंस के आ रहा है बॉल, लेकिन नहीं आ रहा. ऐसे बता दें, जब बॉल की सीम होती है, जब आप क्रॉस पकड़ते हैं, कभी वो शाइन पे गिर जाता है, जो जिसको हम क्रिकेट टर्मिनोलॉजी में पेड बोलते हैं बॉल का, उस पे गिर जाता है तो स्किड कर जाता है, सीम पे गिर जाता है तो स्लाइटली अपनी जो है वो जो स्पीड चेंज करता है बॉल. इवन मोइन भाई अगर ट्रू पिच है तो उस पे सीम से भी बॉल एक ही पेस पे आता है, बॉल वेरी नहीं करती पेस. मुझे मार्क्स से याद आया, a very funny story, I'll tell you. Please go ahead. Do whatever. Please go ahead. Tell us. अभी 2 साल पहले जब आप कोच थे, विकी कोच था, बॉलिंग कोच, आप लोग इंग्लैंड में थे ना, वो जो बबल में थे, मैं भी कमेंट्री के लिए स्काई के लिए गया था. तो आई थिंक टेस्ट मैच था एट सेकंड गेम वाज एट रोज बॉल, राइट, हैम्पशायर, साउथहैम्पटन. सो ऑब्वियसली मैं एक दिन पहले गया था तो इनकी प्रैक्टिस हो रही थी, बिकॉज ये भी उसी ग्राउंड में होटल था, विंडो को आपका जो बैल्कनी थी वो ग्राउंड में खुलती थी, तो मुझे भी वही कमरा था. तो मैच से पहले वो मार्क होते हैं ना प्लास्टिक के, जो आप बात कर रहे थे कि मार्क लगा के, तो हमारे बॉलिंग स्पिन बॉलिंग कोच थे, उन्होंने बॉलर को करीब लाना था, स्टंप के करीब बॉलिंग करे, तो उन्हें उत्थे मालशिया बात था टीम दा. अब मालशिया बैठा हुआ है ऐसे, लेट मी गो देयर. अब मेरे साथ कमेंट्री में मेरा कैमरा कौन सा है? आपका कैमरा वो जिप पे आ जाए, आप जिप पे आ जाए, जिप पे आ जाए. मेरे साथ कमेंट्री में वो मतलब कमेंट्री से पहले माइकल एथरटन और नासिर हुसैन, हम साथ खड़े थे, अभी मैच शुरू नहीं था हुआ, दिस वाज एन आवर एंड हाफ अवे. सो अगर बॉलर ने वहाँ से आना है ना, फॉर इंस्टेंस लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा है यहाँ से, अब उसने जो भी हमारा कोच था उसने उसको क्लोज टू द स्टंप्स लाना था कि यहाँ से आए, यहाँ आए, उसका पाँव यहाँ पड़ा था, तो उसने मालशिया नु इंज बात था. अब
Atherton और नासिर कहते हैं what the hell is he doing? He's gonna step on the Masoor और उसको वो जान से मार देगा. I couldn't stop my laugh. It was funny. तो सारे मार्क्स थे, सारा कुछ था. उन्होंने सोचा होगा कौन जो है नहीं दूर रहते मैं ही बह जाना. Outstanding. All right, with that, let's see what we have in store for you tomorrow. कल एक और मुकाबला है ICC Men's World Cup में. ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहे हैं. कल इसके लिए हम आपकी खिदमत में 12 बजे हाजिर हो जाएंगे. अफगानिस्तान में मुकाबला श्रीलंका है. दोनों ही बेहतरीन टीमें हैं. पुणे में ये मुकाबला खेला जाएगा 1:30 बजे. हम आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे होंगे 12 बजे. And then we'll take you live to Pune Stadium to see this match. And with that, I'm going to say, gentlemen, I know you want an early night out tonight, yes? So I'd say thank you very much. मोइन ज़्यादा दिल चाह रहा है ज़्यादा बैठने का तो मैं आपको बिठा सकता हूँ. नॉर्मल ऐसे ही जाते हैं. अच्छा, आप नॉर्मल कह रहे हैं, कोई जल्दी नहीं है. गोया आप खुश नहीं हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं. पूछ रहे हैं. अच्छा. Moin, thank you very much. Thank you very much. Thank you. I'll see you tomorrow. Misbah, thank you very much. And Wasim, like always, thank you very much. और दोस्तों कल सुबह Shoaib Malik will be back in the pavilion. And with that, I'll say to you, take care of yourselves, be kind to each other, and good night.